Good evening. Welcome to the show presented by Kala in association with our wellness partners, Let's Talk. Let's Talk is creating safe spaces through shared conversations, helping people to connect, reflect, and grow together. Two very quick announcements. We are organizing the third edition of the Kala Literature Festival in association with Civil Services Officers Institute, CSOI, at Vinay Marg, New Delhi on 7th and 8th February 2026. Those interested to partner with us for the festival may please contact kalalitfest@gmail.com. KALALITFEST@gmail.com. Now, the second announcement. As you remember, we had announced an anthology of short stories themed Reduce, Reuse, Recycle, Refuse, and Restore around environment. So many schools and institutions had approached us, and even children had approached us because of the upcoming half-yearly examinations or semester examinations for an extension in the deadline. The closing date is extended by 1 month till 15 December 2025. And as announced earlier, 25 to 30 of the best entries received will be published in an anthology later. The judges will be evaluating these short stories. So that's it so far as the announcements are concerned. Now back to the show. Today we are launching another series under the show. This is titled Journeys with Mridu Manocha. That's right, you guessed it right. These additional episodes will be run on the third Sunday each month. And the moderator for these will be Mridu Manocha. A quick introduction of Mridu. From the erstwhile city of Bombay, Mridu is a consummate people's person. The Gemini in her ensures a vivid imagination and wonderfully eclectic reading choices. A founder member of the Kala Literature Club. In fact, we had the physical meetup of this club this morning. Her transition to the organizing team of the Kala Literature Festival was a natural progression. Mridu truly believes that no man is an island, and her professional journey reflects this, always at the front desk, whether in hospitality or in school administration. So that is Mridu Manocha for you. Now to the guest of the evening. Tonight, we are joined by a remarkable guest, Leeladhar Mandoi, distinguished writer, poet, painter, filmmaker, critic, and editor. He is also the former Director General of All India Radio and Doordarshan. His autobiography, Jab Se Aankh Khuli Hain, is a poignant chronicle of India's coal mine workers, their struggles, resilience, and humanity, set against the backdrop of an evolving industrial landscape. Through 65 evocative chapters, Mandloiji captures the lives of laborers, tribals, women, and children who, even amid hardship, nurtured compassion, courage, and creativity. So join us for an inspiring conversation that celebrates a lifetime of art, empathy, and expression, from poetry and painting to storytelling that gives voice to the marginalized. Before we begin, a quick note.
Tonight's episode is being recorded and will be available on the Kala YouTube channel Sanjay Chandra 5376. Sit back, relax, and enjoy the show. Presented by Kala in association with Let's Talk, featuring Leeladhar Mandloi in conversation with Mridu Manocha. Namaste, Yes. sir. Extending you a warm welcome. And Thank you. before we begin, I would just like to let everyone know that the gentleman we are talking to today is highly accomplished, very well traveled, has worked in almost every vertical under the broad umbrella of the arts. He has been a screenwriter, a playwright. He has written poetry. He is a poet. He writes nonfiction books. And we are here today talking to him as we celebrate his nth number of book, which is his own autobiography. So before I delve into any further questions, I'd like to ask the gentleman to give a small brief about himself, a little background as to how his journey has been. Over to you, sir. Please थोड़ा सा अपने बारे में हमारे viewers को बताएं. Thank you, Mridu ji. It's a matter of great pleasure to be with you and Mr. Chandra. He is a very old friend of mine, and at least we are meeting for the first time. मैं हाँ जी. अपने बारे में ये बताना चाहूँगा कि मैं जिस इलाके से आता हूँ वो इलाका वेस्टर्न कोलफील्ड की खदानों का था, और वो यात्रा जो कोयला निकालने की, कोयला बेचने की, कोयला से पैसे कमाने की, ये जो दुनिया थी, ये 19वीं सदी के आरंभ से तो नहीं, लेकिन उत्तर आरंभ कह सकते हैं, या 50 के बाद से ये सारी खदानों से कोयला निकलवाने की ये परिपाटी शुरू हुई। और उस जमाने में कोयला निकालने वाले प्राइवेट ठेकेदार होते थे, फिर मालिक हो गए, और जैसा आप जानते हैं कि कोयला खदानों का जो राष्ट्रीयकरण है वो तो इंदिरा गांधी के जमाने में हुआ था, आज़ादी के बहुत बाद। तो उस जमाने में जो मजदूर थे वो जो निकटवर्ती तमाम प्रदेश हुआ करते थे, जैसे आप उत्तर प्रदेश को ले लें, बिहार को ले लें, महाराष्ट्र को ले लें, कर्नाटक को ले लें, गुजरात से भी लोग वहाँ आए थे, तमिलनाडु से आए थे। तो ये सब माइग्रेंट लेबरर्स थे, यानी कि जो रोजी रोटी की तलाश में आए थे, और रोजी रोटी की तलाश में आए उन लोगों को जैसा मैंने बताया कि इंदिरा गांधी के जमाने तक, जब तक कि कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था, तब तक वे जिसको आप कह सकते हैं कि परमानेंट नौकरी किसी के लिए नहीं थी जी। हफ्ते में 2-3 दिन काम मिला करता था, और घर अपने खुद बनाने होते थे। कोई स्कूल नहीं था, कोई खेल के मैदान नहीं थे, मनोरंजन के साधन नहीं थे। तो सारे मजदूरों ने खुद ही झोपड़ियां बनाई और खुद ही अपना एक जीवन आरंभ किया। तो इस माहौल में आज़ादी के थोड़ा बाद मेरा जन्म हुआ, और मैंने भी वही माहौल देखा। तो हम लोगों के पास या हमारे आसपास जितने भी थे सब मजदूर थे। मेरे पिता भी खदान में काम करते थे, मेरी माँ भी करती थी, मेरे बड़े भाई भी करते थे, और बचपन में मैंने और मेरे भाई ने भी चाइल्ड लेबर की तरह खदानों में काम किया। 2 तरह की खदानें होती थी। फिर आगे की पढ़ाई या लव फॉर द आर्ट्स ये कोल माइन से कैसे उत्पन्न हुआ वहां रहते हुए? क्या है कि हमारा जो स्कूल था वो पेड़ों के नीचे लगा करता था, और वो सतपुड़ा पहाड़ की तलहटी हुआ करती थी, यानी कि दूर दूर तक फैला हुआ पहाड़ था। अब अगर आप पहाड़ के बीच में पढ़ रहे हैं, पेड़ों के नीचे पढ़ रहे हैं,
तो वहाँ परिंदों चरिंदों की आवाजें थी, वहाँ इतनी सारी वनस्पतियां थी, पेड़ पौधे थे। तो अब मैं सोचता हूँ कि उस जमाने में मैंने अपनी आंखों का इस्तेमाल कैमरे की तरह किया। तो जब आंखों का इस्तेमाल आप कैमरे की तरह करते हैं, तो हाँ बहुत जी। दूर यानी एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट भी देख सकते हैं, लॉन्ग शॉट में भी देख सकते हैं, मिड शॉट में भी देख सकते हैं, क्लोजअप में भी देख सकते हैं। और उसी समय आपके जो कान हैं वो माइक्रोफोन की तरह ऑन होते हैं, तो आप परिंदों चरिंदों से लेकर सतपुड़ा में जो हवाएं चलती थी, जो नदियां बहती थी, जो तालाब थे, जो पोखर थे, पेड़ों का हिलना था, और हम लोग आसमान को देखा करते थे, तो आसमान की रोशनी छन छन कर आती थी। अगर आप इन सारी प्रॉपर्टीज को एक साथ मिलाकर किसी व्यक्ति की चेतना में जी। भर दें, तो वो चित्रकार इस अर्थ में हो जाता है कि बचपन में पहले वो रेखांकन करना शुरू करता है, फिर वाटर हम्म। कलर में जाता है। अगर कुछ सीख लेता है तो सबसे पहले वो या तो अपने माता पिता का पोर्ट्रेट बनाता है, या हम्म। लैंडस्केप बनाता है। अगर ऑयल में चला जाता है तो वो मूर्त और अमूर्त किस्म की पेंटिंग तो करना सर शुरू एक करता है। तरीके से कहें तो आपका तो बेस्ट टीचर रहा है, बाकी तो इंस्टीट्यूट्स में गए, पैसे पे किए, सिनेमा सीखा, एडिटिंग सीखी, फिल्म मेकिंग सीखी, पेंटिंग सीखी। आपको तो भगवान जी ने नेचर नहीं सिखा दिया। जी, नेचर नेचर ही सब सिखाता है। अगर आप जी। फिल्म देखें तो उसमें नेचर है, जी। उसमें जो म्यूजिक है वो भी नेचर से आया है। जो आप हम्म। लाइट एंड साउंड की बात करते हैं, जो आप प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो वो जी। सब की सब आपको नेचर में और उन घरों में, झोपड़ियों में सब मिल जाती है जो आज आप 5 स्टार होटल में देखते हैं। तो वो आपकी प्रॉप हो जाती है। जी। इसके साथ आप परिंदों को नाचते देखते हैं, आदिवासियों को नाचते देखते हैं, मजदूरों को नाचते देखते हैं, तो आपके भीतर एक डांस फॉर्म भी आ जाता है। और जो सर अक्सर, हाँ जी, सॉरी, आप कह और रहे थे जो डांस। और जो आप बचपन में कथाएं सुनते हैं, जो जी। वो स्टोरी टेलिंग का फॉर्म है। तो जी। जी। वही स्टोरी टेलिंग आपको लगभग हर कलाओं में करनी होती है। स्टोरी टेलिंग कविता में भी होती है, उपन्यास में भी होती है, कहानी में भी होती है, जी। फिल्म में भी होती है, चित्रकला में भी। जब आप पोर्ट्रेट या लैंडस्केप बनाते हैं तो उसमें भी एक कहानी होती है। वरना मिनिएचर पेंटिंग्स का जो पूरा सिलसिला था, जिससे आज भी लोग जी। इंस्पिरेशन लेते हैं, तो उसमें वही स्टोरी टेलिंग है। तो आप देखेंगे सर कि आर्ट के आपके जितने लिए ये ऑब्जर्वेशनल करते हुए आप फिर इसको एक डॉक्यूमेंट करने लगे, एक फिल्म मेकिंग में आ गए। इस सब को आपने फिर अब किताबों में कैसे ट्रांसलेट किया? रिटन वर्ड, ऑथर की शुरुआत कहाँ से आई आपकी? कहानियां देखिए, सुनना, कहानियां कहना, कहानियां दिखाना और कहानियां लिखना, ये सब अलग अलग बातें होती हैं, हर कोई हर चीज नहीं कर पाता। आप में ये कहाँ से कला आई लिखने की? देखिए कहाँ मैं से शुरुआत हुई? मुझे मुझे सबसे ज्यादा इत्मीनान, सबसे ज्यादा जो सुकून है जी। वो अपनी जिंदगी में, क्योंकि वो एक बहुत कठिन जिंदगी थी और जी। मनोरंजन के साधन नहीं थे। तो आपके आसपास जो लोकगीत गाने वाले लोग थे, जो रामायण गाने हम्म। वाले लोग थे, जो महाभारत की कथा सुनाने वाले लोग थे, जो अलाउद्दीन की कथा सुनाया करते थे, तो मेरी जो बचपन में जो रुचि बनी वो कलाओं के साथ साथ साहित्य में इस तरह से बनी। और स्कूल से मैंने अपनी नोटबुक में कुछ लिखना शुरू कर दिया था। तो हमारी एक सरोज मैडम, जिस समय मैं पढ़कर निकला स्कूल से, तो उन्होंने मुझे एक पेन देते हुए कहा कि तुम जो अपनी नोटबुक में लिखा करते थे वो सब मैं पढ़ा करती थी, और इसको तुम आगे भी कंटिन्यू करना। तो इस तरह से पहली मेरी जो आमद हुई वो कविताओं में हुई, और कविताएं ओके। मैंने लिखना शुरू की। और वो कविताओं लिखने का जो सिलसिला है वो स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ में गया, कॉलेज लाइफ से जी। फिर उसके बाद जब मैं ऑल इंडिया रेडियो दूरदर्शन में आया, तब हम्म। वहां पर तो लिखना बहुत जरूरी था। जी। आपको रेडियो की स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती थी, रेडियो में प्रोग्राम एंकर करने होते थे, आपको जी। फीचर बनाने होते थे, आपको ड्रामा बनाने होते थे। तो उन सारी कलाओं को जिनको मैंने बचपन में देखा था, वो सारी कलाओं ने मुझे रेडियो और टेलीविजन में ऐसी चेतना दी, क्योंकि मेरे पास दो ही चीजें थी जिन्हें लेकर मैं चला था।
एक तो हाँ मेरे जी। पास ऑडियो एस्थेटिक्स था और वीडियो एस्थेटिक्स था। यानी कि जी। जो मैंने आंखों से देखा वो कैमरे की तरह देखा, और जो कानों से सुना वो माइक्रोफोन की तरह। तो बिल्कुल ऑडियो और सही। वीडियो एस्थेटिक्स मेरे पास था, तो रेडियो में ऑडियो से जी। काम चला। और जब मैं टेलीविजन में गया तो वहाँ ऑडियो और वीडियो दोनों साथ में था। और जो साहित्य के संस्कार लेके चला था, उससे मैंने हम्म। रेडियो और टेलीविजन के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग शुरू की, फिर छोटी जी। छोटी फिल्में बनाना शुरू की। रेडियो के यहाँ लिए मैं भी इस अपने तरह की कई। दर्शकों को एक और बात बताना चाहूंगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, द जेंटलमैन इज एन एमए इन इंग्लिश लिटरेचर, बट वो लिखते हिंदी में है। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। सर, इसके बारे में हमें बताएं कि आपकी पढ़ाई मूल रूप से इंग्लिश में है, जैसे हम सबकी मोस्टली है, बट आपका रुझाव और आपका पसंदीदा मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इज हिंदी। प्लीज बताएं, हाउ डिड दिस ट्रांजिशन इसका हैपन? इसका मूल कारण ये है, जैसा मैंने बताया, कि मैं अपनी स्कूल लाइफ से जो लिखा करता था वो अपनी भाषा में लिखा करता था। मुझे अच्छा। स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ तक आते आते इस बात का एहसास होने लगा कि इफ आई हैव टू एक्सप्रेस माय फीलिंग्स and whatever content I have gathered in and जी। around, the best way to express is Hindi and not English. मैंने इंग्लिश में पढ़ाई की, पहले मैं इंग्लिश में लिखा करता था। आज भी कुछ चीजें जहां जरूरी होती है वो इंग्लिश में लिखता हूँ। बट एज फार एज माय क्रिएटिविटी इज कंसर्न, it comes very surprisingly with all the minute details in Hindi only. Then वेरी I did नाइस। my MA in Hindi literature. I did my journalism also. I studied advanced studies of broadcasting for radio and television in BBC London. So वाओ। that way, uh, all this journey came in Hindi as far as my profession was concerned. एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो मृदु जी करने होते हैं वो तो सब आपको अंग्रेजी में करने जी होते हैं, जी आपको जी जी। मालूम है। So, sir, लेकिन जब primarily आपको as we are Kala, crazy about हम्म, literature and arts, आपका हम्म, आर्ट्स का पहलू तो हमने सुन लिया। अब थोड़ा लिटरेचर का सुनते हैं आपसे। आ, हम जानना चाहेंगे, ऐसी कौन सी लेखनी है जिसने हम्म, आपको प्रभावित किया, which has really influenced your way of thinking, besides growing up, जो आपने रामायण सुनी, महाभारत सुनी, चौपाइयाँ पढ़ी, वो सब के अलावा कौन सी ऐसी एक बुक है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे सबकी कोई एक फेवरेट होती है, एक दो फेवरेट होती हैं अलग अलग जॉनर्स में, ऐसी कौन सी हम्म। बुक है जो आपको लगती है कि दिस इज अ मास्टरपीस, मतलब जो आप हमेशा अपने लिए एक संजो के रखेंगे कि ये मेरी एक फेवरेटेस्ट बुक है, जैसे कहें तो? और एक दूसरे देखिए ऑथर की, फिलहाल आपकी नहीं, फिलहाल दूसरे ऑथर की बताएं। जी जी, दूसरे ऑथर की, जी। दूसरे ऑथर में मुझे जहां तक हिंदी का सवाल है, तो उसमें मुझे प्रेमचंद की रंगभूमि और हाँ हाँ। रसूल हमजतोव की मेरा दागिस्तान, ये अच्छा। दो कृतियां ऐसी हैं जो मेरे मन के बहुत करीब रही हैं। वैसे मैं पोएट हूँ, हाँ जी। और मैंने अपनी जो राइटिंग शुरू की है वो उसका मीडियम पोइट्री रहा है। तो मैंने पोइट्री में ही सारी विधाओं को इसलिए पाया क्योंकि मेरे पास उनके लिए कलाओं का अनुशासन भी बहुत नेचुरल वे में ग्रो करता रहा है। तो हम्म। वैसे भी आप देखेंगे कि आपके जितने भी क्लासिक्स हैं जी वो तो कविता में ही है। जी जी। स्टोरी टेलिंग भी अगर आपको मिलती है तो वो आपके क्लासिक्स में ही मिलती हैं। बिल्कुल तो मुझे बिल्कुल। लगा कि ये वो चीजें जिसमें आप स्टोरी टेलिंग भी कर सकते हैं। और जी जहां तक मैं कवि था, तो मेरे पास तो मजदूरों का जीवन था, मेरे पास आदिवासियों का जीवन था, मेरे पास दलित और अल्पसंख्यक का जीवन बचपन के साथ था। तो उसका जो कंटेंट था, उस कंटेंट को मैं कविता में भी ला सकता था और नॉन फिक्शन में भी ला सकता था। जैसे ये मेरी किताब नॉन फिक्शन की है, और ये जी पूरी उसी सर्वहारा मजदूर और मजदूरों की लाइफ पर है। और जो मेरा मन है वो एक स्त्री की तरह है।
I always think to the world as a woman and not as a man. That's a तो lovely thought, sir. That's a lovely thought. Very progressive, I must say, अ, आज तो के बिकॉज दौर ऑफ दैट जिस किताब पर चर्चा हो रही है इसमें जो प्रोटोगनिस्ट है वो मेरी माँ है, मेरी बहन है, और खदान में जो वीमेन लेबरर्स काम करती थी जी, उनकी लाइफ है। और इसके साथ साथ जो ट्राइबल्स वहां थे, गोंड जी, थे, कोरकू थे, भारिया थे, ये जो सारे लोग जहां पर स्त्री अनिवार्य रूप से श्रम करती है, जी, वो अनिवार्य रूप से लेबर करती है, घर में भी, घर के बाहर भी, पहाड़ों में भी जाती है, खदानों में भी उतरती है। तो वो प्रोटोगनिस्ट है इसकी। तो ये मैं कहता हूँ, और हिंदी में तो ये इस किताब के बारे में बार बार कहा गया है कि लेबर क्लास की और कोल माइनर्स की ये शायद पहली किताब है जो हम्म, इस तरह से हिंदी में आई है। ओके, और इसमें मेरी कहानी नहीं है, वो उस पूरे समाज की कहानी है, उन पूरे स्त्रियों की कहानी है जिन्होंने ये हम्म, समाज बनाया। सो दैट इज द अच्छा। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग विच हैज बीन नोटिस्ड एज फार एज दिस बुक इज कंसर्न्ड। और आपने भी बहुत लिखा है, आपने पोएट्री भी लिखी है, फिक्शन, नॉन फिक्शन, आपने बहुत कुछ लिखा है, तकरीबन हर जॉनर में ही लिखा है। आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन अराउंड 50 बुक्स आपकी पब्लिश हो चुकी हैं, है मोर ना? देन 50। ओके, दैट्स लवली। तो सर, आपकी अपनी कलेक्शन में से ऐसी कौन सी एक किताब है जो आप एकदम ट्रू टू योर हार्ट रखते हैं, जो आपको लगा कि दिस इज रियली माय फेवरेट बुक, दिस इज समथिंग दैट केम, मोस्ट ऑफ योर राइटिंग्स आर ऑब्वियसली ट्रू टू योर हार्ट, बट देयर मस्ट बी वन पर्टिकुलर बुक व्हिच यू फील दिस इज इट, ये मेरी जिंदगी का सरमाया है टाइप्स। देखिए ऐसी क्या है कौन कि सी किताब है? मैं इसमें एक किताब की तो नहीं, लेकिन जी। मैं कई विधाओं में लिखता हूँ। तो मुझे लगता है हम्म। कि हर विधा की कम से कम एक किताब मुझे कहनी चाहिए। तो हाँ। पोइट्री में मेरी सबसे फेवरेट बुक है, जो पहली किताब थी, घर घर घूमा। अच्छा। ये वर्कर्स के ऊपर है। इसमें आदिवासियों की कविताएं, और आदिवासियों की कविताएं भी मध्य प्रदेश से लेके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो सबसे हम्म। दुर्लभ जी। जनजातियां हैं, नेग्रिटो मूल की हैं, और निकोबारी और शोम्पेन है जो मंगोलियन रेस की कही जाती हैं। तो इनकी जो कविताएं हैं विद सम पॉलिटिकल पोइट्री, वो मेरी सबसे फेवरेट बुक है। और उस किताब से मुझे जो जमीन मिली थी, मुझे लगता है उसी को मैंने धीरे धीरे करके दरख्त बनाया, और उसकी जो कई शाखाएं फूटी हैं, तो उसकी जमीन में वही था जो जी। सर्वहारा जी। वर्ग था, और अननोटिस्ड हो जाने वाले लोग थे। तो जो अननोटिस हो जाते हैं, जो एक तरह से शोषित हैं, प्रवंचित हैं, जी। वो मेरी किताब में मुख्य रूप से आते हैं। एंड अगर मैं नॉन फिक्शन में कहूँ, तो ये मेरी सबसे प्रिय बुक है जिसके वो आप चर्चा में ले रही हैं। इसके अलावा एक बुक है, राग सतपुड़ा। ये जो सतपुड़ा अच्छा। माउंटेन है, उस हाँ जी। माउंटेन की लाइफ और ब्यूटी के ऊपर वो किताब है, जहां से मेरी हम्म। भाषा का एस्थेटिक्स बना है। सो आई कैन से अच्छा। दीज थ्री बुक्स एट लार्ज। वैसे तो बहुत सारी बुक हैं, क्रिटिसिज्म की भी हैं, जी। एसेस की भी हैं, लेकिन आई हैव टू रेफर दीज थ्री बुक्स तो मैं तो प्राइमरी। सबकी तरफ से आपको सिर्फ थैंक यू कह सकती हूँ, इतनी बड़ी लेगेसी आप हमारे लिए छोड़ रहे हैं, बना रहे हैं, करते ही जाएं प्लीज। जब हम पहले बात कर रहे थे, बिफोर वी स्टार्टेड दिस सेशन, आपने एक फ्रेज कही थी जो मुझे, दो कही थी इनफैक्ट, बट एक एक करके बात करते हैं। पहले एक आपने कहा था इंटरडिपेंडेंस ऑफ आर्ट्स। आप जी। में तो सारे आर्ट्स लिटरली समाये हुए हैं, आपने ऑलमोस्ट एवरी वर्टिकल किया है। व्यूअर्स, नॉट जस्ट इज ही अ फिल्म मेकर, an editor, a script writer, a author for fiction, non-fiction, a poet, he's also a painter.
सो आप सिर्फ ये ना समझें कि उन्होंने सिर्फ एक लिटरेचर एंड आर्ट्स को, वर्टिकल्स को ही देखा है। ही इज अक्रॉस। मेरे ख्याल से अब जो सिर्फ रह गया होगा फॉर हिम टू डू अ एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑन स्टेज डांस, सिर्फ शायद वो ही रह गया होगा। हाँ जी सर। जी जी, लेकिन बट सर मैं प्लीज, डांस ये पर लिखता हूँ। इंटरडिपेंडेंस ऑफ आर्ट्स जो आपने कहा था, हम्म। इंटरडिपेंडेंस हम अलग से समझ सकते हैं, बट इंटरडिपेंडेंस ऑफ आर्ट्स, इसके बारे में बताएं सर। प्लीज हमारे देखिए व्यूअर्स क्या के लिए थोड़ा सा तफसील करें। देखिए मृदु जी, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जैसे जी चंद्रा साहब से बात करता हूँ, तो एक कंप्लीट मनुष्य क्या होता है? कंप्लीट मनुष्य किसी एक डिसिप्लिन में पढ़ लेना नहीं होता है। जी आप आपके जीवन में जितने, मतलब आप तो एक सभ्यता के वाहक हैं। जी एक लंबी परंपरा है, जीवन की भी और समाज की भी। तो जो संस्कृति नाम की चीज है, वो समाज के भीतर से ही बनकर निकलती है, और उसमें आपको सभी तरह के कलाकार और सभी तरह की कलाएं सांस लेते हुए दिखाई देती हैं। अब अगर आप उन सांसों से जुड़ जाते हैं, तो वो कलाएं भी आपके भीतर प्रवेश कर जाती हैं। तो अगर आप नृत्य से जुड़े हैं, तो आप नृत्य के बारे में जानना चाहेंगे। आप सिर्फ उसका इतिहास नहीं जानना चाहेंगे। आप शास्त्र के अलावा जो कुछ उसमें परफॉर्मेंस के लेवल पर हो रहा है, जो कुछ उसमें रियाज के लेवल पर हो रहा है, तो एक कलाकार को आप रियाज करते हुए, उसे परफॉर्म करते हुए, उससे बातचीत करते हुए, आप उस कला को अपने भीतर जगह दे सकते हैं। तो उसी तरह से आप दूसरी कलाओं को ले लीजिए, चित्रकला को ले लीजिए। जब आप किसी चीज से प्रेम करते हैं, तो उसको ज्यादा जानने के लिए, अपनी संवेदना में ज्यादा उतारने के लिए, फिर उस डिसिप्लिन के लोगों से आप मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनका काम देखते हैं। तो इस तरह से चित्रकला का शुरू हुआ। मैं बचपन से जो चित्र बनाते थे, हमारे दो गुरु थे, एक मेहताब मासब थे और एक संचलेश थे हमारे जिले में। तो मैं उनसे जुड़ा, तो कला की बहुत सारी बारीकियां, चित्रकला की बारीकियां उनसे समझ में आई। मेरी माँ और मेरी बहन और उनकी सारी सहेलियां लोकगीत गाती थी। वो बुंदेली की भी गाती थी, वो जी अवधी के भी गाती थी। तो उस तरह से जो संगीत लोरी के साथ शुरू होता है, वो माँ के साथ, या माँ जैसी बहुत सारी माएँ थी, उनके साथ सुनते हुए लोक से वो सुगम में पहुंचा। सुगम से आपकी रुचि उपशास्त्रीय संगीत में हुई, जहां आप ठुमरी, दादरा और इस तरह के फॉर्म्स को पाते हैं। फिर आप शास्त्रीय संगीत में गए। अब चूंकि मैं रेडियो और टेलीविजन में था, तो इन सारी कलाओं को जानना और बहुत नजदीक से जानना और उनका ज्ञान भी रखना मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया। तो फिर कुछ मैंने अध्ययन से सारी चीजें जानी। और रेडियो और टेलीविजन में आप जानते हैं, सारी कलाओं के लोग आते हैं। जी उसमें फिल्म वाले लोग भी आते हैं, उसमें पेंटिंग वाले भी आते हैं, उसमें स्थापत्य वाले भी आते हैं, उसमें लोक और आदिवासी कलाओं के लोग आते हैं। तो इन सब के साथ जब आपका एक संबंध बनता है, तो वो कलाएं आपको आकर्षित करती हैं कि आप उनके बारे में और से और जानें। और जब आप इन सारे कलाओं को जानना शुरू करते हैं, तो उसके साथ आप देखते हैं कि आपके भीतर जो इंसान था, वो नहीं रहा जो मूल रूप से था, या जैसा कि समाज में होता है, जो कलाओं से नहीं जी जुड़ते हैं। तो मेरे भीतर बहुत सारे कलाकारों की भूमिकाओं की वजह से, जब उनके आर्ट फॉर्म्स और उनकी बारीकियां मेरे भीतर आनी शुरू हुई, तो वो मेरी हम्म। कविता में भी आई, वो मेरे नॉन फिक्शन में भी आई, वो मेरी पेंटिंग में भी काम करने लगी। और वो रेडियो और टेलीविजन के लिए जो मैं प्रोडक्शन किया करता था, हम्म। उसमें भी उनका आना शुरू हो गया। तो ये, यानी कि सारी कलाएं एक दूसरे में जुड़ी हुई है। अगर मैं जी एक उदाहरण के लिए किसी भी एक मीडियम की बात करूं, जैसे आप उदाहरण के लिए फिल्म ले लीजिए, मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी जी बनाता हूं। अगर आप फिल्म बनाते हैं, तो आपको क्या क्या चाहिए? हाँ जी आपको पहले एक स्क्रिप्ट चाहिए, यानी कि आपको साहित्य चाहिए। उसके अलावा आपको दृश्य चाहिए। अगर आप सतपुड़ा पे फिल्म बना रहे हैं, तो हाँ आपको जी सतपुड़ा को कैमरे पे करना पड़ेगा। लेकिन सतपुड़ा के सिर्फ विजुअल्स नहीं ले सकते, विजुअल्स के साथ आपको वहां का जो एम्बियंस साउंड है,
वो भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, फिर जी आपको कैरेक्टर भी वहीं से लेने पड़ेंगे। तो इस तरह से जो कलाएं हैं, अब चूंकि अगर आप चित्रकला में हैं तो आपको ये मालूम रहेगा कि जी क्योंकि चित्रकला में आप पेंटिंग बनाते समय इस बात को ध्यान रखते हैं और नेचर को भी देखते हुए ध्यान रखते हैं कि अगर सूरज आता है तो पेड़ों से अपनी रोशनी कैसे छान के नीचे तक लाता है। तो हाँ थिएटर जी। में भी आप देखेंगे कि एक सेंस ऑफ लाइटिंग आपको चाहिए, सो थिएटर फिर में भी यही चाहिए, वो आ म्यूजिक के गया ना प्रोग्राम में भी आपका जो चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट आपने जो मुझसे उस वक्त कही थी जब हम बात कर रहे थे, assimilating the different art forms through writing, आपने यस, यही जी किया जी है, सारा एक ही में समावेश हुआ है थ्रू राइटिंग। जी। सर और वो अपने बट आप हुआ है, मेरे को मतलब मालूम है आपने आज जानबूझ हमारे के पास, नहीं। सॉरी, आप क्या मैंने कह कहा रहे थे? कि वो, मैं ये कह रहा था कि जब ये चीजें आपके भीतर आ जाती है तो वो अपने आप जी किसी भी दूसरे फॉर्म में वो जी ट्रांसफॉर्म होने लगती है। जी। जी मैं सॉरी बट हमारे पास टाइम की कमी रहती है, वी नीड टू कीप इट शॉर्ट। बट मैं आपको इस तरह जाने नहीं दे सकती विदाउट अंडरस्टैंडिंग वन मोर थिंग और लर्निंग फ्रॉम यू। आप ने इतना पढ़ा, आप इतना घूमे हैं देश विदेश, यू वर्क विद बीबीसी, यू वर्क विद द इंडियन रेडियोज एंड टेलीविजन एंड मीडिया ऑल्सो। एक एक, बिफोर वी फिनिश इट ऑफ, एक सिमिलैरिटी और एक डिफरेंस, एक चाहे आप इसको कल्चरली मान लें, चाहे आप इसको लिटरेचर या आर्ट्स के रूप में देख लें, बट एक सिमिलैरिटी और एक डिफरेंस ऑफ मे बी सोच की भी डिफरेंस हो सकती है, तो आपकी नजरिए से एक एक चीज बता दें सर देखिए क्या बिटवीन। है कि हाँ जी। सारी चीजें देखने के तरीके, देखने की प्रविधि के ऊपर निर्भर करता है। हाँ जी। आप देखना क्या चाहते हैं। अगर आप सही देखते हैं तो आप सही लिख भी सकते हैं, और सही जब आपका लिखना होगा तो वो एकांगी नहीं होगा, यानी अकेला नहीं होगा। आप उसके साथ सारी कलाओं के फॉर्म में अपने आप किसी चीज को अभिव्यक्त करना शुरू कर देते हैं। तो क्रिएटिविटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच स्टार्ट फ्रॉम सीइंग। हाँ जी। अगर आप सही देख सकते हैं तो किसी भी कला में सही तरह से एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, बहुत इंडिपेंडेंट तरीके से भी। और हम्म। अगर आप कहें कि बहुत सारे लोग प्रभावों में रहते हैं तो वो प्रभाव हो सकता है, लेकिन आप जब तक अपनी कला को, अपनी राइटिंग को एक खास समय में जाकर नए हाँ सिरे से जी। इन्वेंट नहीं करते हैं, तब तक आप एक फोटोकॉपी की तरह होते हैं। तो मेरे जीवन में सारी कलाओं के आने से मेरा किसी और की तरह लिखना या उसका फोटोकॉपी हो जाना ये ना हो सका, या ये कहिए कि मैं उसमें बच गया। That's nice. That's nice. It's been actually a pleasure, sir, to know and to talk to you and understand कि हमारे देश में इतने हम कला है और इतने गुणवान लोग हैं। We really need to celebrate people like you more. मैं होप करती हूँ कि और भी इस तरह हम सबसे मिल पाएं, और भी ऑथर्स और भी कलाकार। इट डजेंट ऑलवेज हैव टू बी बुक्स, इट कैन ऑल्सो बी समवन इन द आर्ट्स, द अदर आर्ट्स ऑल्सो। बट इट्स अमेजिंग कि हमारे देश में इतने हीरे हैं जिनको हम अभी तक तराश ही नहीं पा रहे हैं, या तराश भी लिए, उन्होंने अपने आप को ही तराश लिए, बट हम उनको पहचान ही नहीं पा रहे हैं। जी So जी it's जी been जी। a pleasure, sir, आपसे बात करके, आपसे मिलके। I hope we can do this again and then we can in detail talk about your books also, जो आज समय की कमी से रह गया है। मैं आपकी और बहुत सारी चीजों के बुक्स के बारे में बात करना चाहूंगी। सो संजय सर, ये अब आप पर है कि आप प्लीज एक और बार फैसिलिटेट अगर करवा सके तो। थैंक यू सो मच सर, एंड दिस has been a real थैंक यू, pleasure सो and काइंड ऑफ यू। So, thank you, Mandoi sir, and thank you, Mridu. It was really a wonderful experience for me. I have known Mr. Liladhar Mandoi for now so many years, and every time that I meet him, I learn something new from him, about him, माय different प्लेजर facets सर, of माय प्लेजर। sir. So that was जी Liladhar Mandoi reminding us that even amidst the deepest hardships,
compassion, courage, and creativity continue to thrive. That's it for today's episode of the show, brought to you by Kala in association with our wellness partner, Let's Talk. If you missed any part of the conversation, the full recording of the episode will be available later on the Kala YouTube channel, Sanjay Chandra 5376, SANJAYCHANDRA 5376. You can watch it there, subscribe to the channel for further notifications also. And do not forget to check out the evocative autobiography of Mandloi Saab, Jab Se Aankh Khuli Hain, a moving chronicle of India's coal mine workers, their struggles, resilience, and humanity. So, see you the next time. Till then, take care and enjoy the rest of your Sunday evening. Namaskar. Thank you. नमस्कार. Thank you.